Okay. I think there was a chat in Vishwaja ma'am. If you're not able to listen, me might be you have not joined via audio. Please check it. Okay. In the future, next update in this would be we'll be giving you option to upload marks through Excel also. Suppose you have given, you have filled the marks in Excel or something. So in next coming, I think by next week, that also we will make you available that you can directly upload the Excel as well. You can directly upload the Excel as well. Okay. So this is point one. I'll do one thing. So we can. Okay, so I'll show you this part and then we'll go to second part. Okay, so I'll stop share. Share screen. Okay, so you can see my screen. Yes, sir. So we'll log into admin. Okay, in admin, you go to new CCE. New CCE, you go to Scholastic. Okay, so there's a new tab here called as import marks. Still, we have not deployed this to all schools. We'll be deploying it in next 1 or 2 days. But there's a tab here called as import marks. So once you click on this, it will show your academic year, like for which academic you want to transfer. Now say I want to transfer for 2021 online class demo. It will ask me for which class. Say I selected third A. Now here there's no exam assigned. So here it would show you the exams which has been assigned. So say I want to copy this to FA2 exam. So I select FA2, term 2. I'll select the subject. So whatever subjects you have assigned, it will show you English. Now parameters. So there are two parameters. One is oral and one is written. Suppose I want to copy this to written marks. And so here it would give me all the tests which we have created. Might be through LMS or so automatically it will show you here all the quizzes you have created for this year. And directly you can then select that. Say I want this test marks to be copied. So it would take this and it would directly import these marks to that exam. Suppose a third A English, and I say third A English, and I click on submit. And now it is giving me a message that out of marks are not matched because the year out of marks would be different and their out of marks would be different. So it is not getting matched. If it would have been same, then it would copy the marks automatically. Okay. So, and once then here, if you go and we can see that the marks are copied. So here the automatically the marks would come over here. Now because the out of marks, now here the out of marks is 50 marks. Now that 50 marks and the test marks should match, then only it would copy. So that's the reason it was not reflecting here. But so when we do it on live, it would work. Okay. So this is how, and here itself we are going to give you option to upload Excel as well. So you can upload the Excel also. Okay. So in any query on this? I'm audible, right? I'm getting few chat that I'm not audible. Yes. No, I sir, think you you are need audible. to.
You There need might be to no network Vishwajam issue. MS. Yeah, you need to join my audio. Yes. So yeah, so this is how you can import marks directly. Your LMS marks or this you can directly import here. So now what are we doing is, so whatever quizzes you are conducting on LMS, it by default it's getting shown here. Like it would be shows here, like whatever LMS quizzes or anything you're conducting, it is showing here. And from this here directly you can import to the results. Okay, समझा कुछ query हो तो you can ask me, you can unmute and you can ask me any queries on this. Yes, किसी को कुछ queries? No query, clear? तो basically अभी क्या है कि आपको need to go to new CCE and वहां से आपको CCE Scholastic में जाना है and यहाँ पे आपको import marks करके option रहेगा and बस आपको वहाँ पे क्लास सिलेक्ट करना है जो क्लास में आपको वो इंपोर्ट करना है एंड ये करना है लेकिन वो इसके पहले आपको एग्जाम असाइन करने पड़ेंगे जो अपन हर साल एग्जाम असाइन करते हैं वो आपको एग्जाम असाइन करना पड़ेगा एंड वो आप लास्ट ईयर का अगर सेम है तो आप एक सेटिंग है डायरेक्टली आप वो लास्ट ईयर का एग्जाम डायरेक्टली आप कॉपी भी कर सकते हो करंट ईयर में एग्जाम एंड मैपिंग एंड फिर आपको सिर्फ वो जो क्लास टेस्ट सिलेक्ट करना है कि जो क्लास टेस्ट का आपको यानी ये क्लास टेस्ट यानी बेसिकली जो क्विज है एलएमएस क्विज के मार्क्स वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड डायरेक्टली वो आपको डायरेक्टली रिजल्ट में इंपोर्ट हो जाएंगे ओके सो इफ नो क्वेरी आई विल प्रोसीड फर्दर आप ट्राई करो आई थिंक अभी तक डिप्लॉय भी नहीं हुआ आपके पोर्टल्स पे वो हो जाएगा एक दो दिन में एंड देन यू कैन ट्राई इट ठीक है देन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट सो नेक्स्ट फीचर वी हैव एडेड इज क्रिएट फोरम लाइक जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो देयर वाज अ फ्यू रिक्वायरमेंट्स कि हमको ऐसा यू नो यू कैन मेक योर ओन ग्रुप्स एंड यू कैन चैट अमंग्स द अभी व्हाट्सएप में क्या होता है कि एक तो नंबर शेयर हो जाते हैं यू नो सबको एक दूसरे के नंबर चले जाते हैं तो दैट इज वन आई डोंट नो प्राइवेसी कंसर्न आप बोल सकते हो जो भी है तो वो एक प्रॉब्लम है तो सिमिलरली हमने भी वी हैव एडेड अ फीचर वेयर इन यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप्स वो ग्रुप में सिर्फ टीचर का ग्रुप हो सकता है सिर्फ स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है मिक्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट का ग्रुप हो सकता है तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप ग्रुप्स इसमें क्रिएट कर सकते हो तो अभी ये फीचर हमने टीचर ऐप के नए अपडेट में अवेलेबल है ये फीचर एंड नेक्स्ट अपडेट में ये पेरेंट ऐप में वी विल बी मेकिंग इट दिस अवेलेबल ऑन पेरेंट ऐप आल्सो इन नेक्स्ट अपडेट बट ये जो ग्रुप्स क्रिएट करना है एवरीथिंग दैट इज on the admin side. So students themselves can't create the group and teachers themselves can't create the group. So everything admins group create करेंगे and then this will be made available. So I'll show you how this works. तो आपको उसके लिए पहले नोटिफिकेशन सेंटर में जाना है Okay, so you go to notification center. यहाँ पे there's an option called as custom groups. वीडियो ऑफ क्या है Okay, custom groups में इसमें कैसा होता है कि यू कैन क्रिएट अ मेन ग्रुप और उसके अंडर आप सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हो कि जैसे अभी आपका एक मेन ग्रुप है कि जैसे मैंने इधर देखो मेन ग्रुप किया टीचर्स नेम सॉरी ग्रुप का नाम टीचर्स है और ये पेरेंट ग्रुप है प्राइमरी टीचर्स तो वैसे आपको जैसे आपने एक मेन ग्रुप डाला कि जैसे ग्रुप नेम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ठीक है या जैसे सपोज आपको पीटीए का बॉडी बनाना है पीटीए तो मैंने पीटीए डाला एंड इसको मैंने इस फोरम ग्रुप ऐड कर दिया ओके तो यहाँ पे अपने को इस फोरम ग्रुप करके यस करना है फिर ही वो ये हो जाएगा अभी इसका ग्रुप नेम आ गया पीटीए ओके एंड नाउ आई नीड टू ऐड मेंबर्स टू दैट ग्रुप जैसे मैंने ये ग्रुप ऐड किया पीटीए इसमें एक सब ग्रुप मुझे क्रिएट करना पड़ेगा
say primary, या you can say first standard PTA. ये PTA तो कॉमन रहता है ना, ऐसे प्राइमरी PTA बना दो, प्राइमरी PTA, ठीक है। एंड मेन ग्रुप किया ये PTA के अंदर, ये प्राइमरी PTA किया, ये ऐसे ऐड कर दिया इसको। Okay, now I'll go and add participants to this. अभी ये ग्रुप किया PTA, इसका सब ग्रुप है प्राइमरी PTA, and now I can select students and staff. तो मैंने ऐसे students select किया and I can add students to this group. So जैसे फर्स्ट डे के जो भी पेरेंट्स आपके जो PTA है उसको आप ऐड कर सकते हो, and you can also add teachers in the same group. Okay, and फिर से मैं इसमें PTA, primary PTA, I can select staff and I can add staff members also in this group. Select all कर दिया, add कर दिया मैंने, ठीक है। So now I can see here manage group members में I can see primary PTA. So here we can see and I can view here कि इसमें teaching teacher और staff yes है, there are 25 staffs and 3 students. So this is what we can see. Now अभी मैं अब मेरा mobile app share करता हूँ and we will see how does it look on mobile app of the teachers. So I'll stop share. Okay, I'll share my mobile screen. Okay, now अभी मैं टीचर के ऐप पे लॉगिन करता हूँ। So there's a new icon here on the right hand side. You can see right hand side corner called as forum app. So once I click on that, तो अभी मुझे I can see all the groups. अभी ये जो अपना PTA प्राइमरी PTA ये ग्रुप अभी अपन ने क्रिएट किया, और ये जो बाकी के जो पहले ग्रुप्स थे वो पहले से ऐड किए हुए थे, मींस ऑलरेडी डिफाइंड थे उसमें। तो वी कैन सी अब ये प्राइमरी टीचर्स ग्रुप है, तो यहाँ पे सब पुराने जो चैट है तो वो अपने को पुराना चैट भी दिखता है, एंड वी कैन सी हियर ग्रुप पार्टिसिपेंट्स की ये ग्रुप में कौन कौन है, क्या क्या है। तो ये दिस वे वी कैन सी हियर। नाउ Vibha, can you check why is not getting sound? I don't know. I'm audible, right? Yes, sir. You are audible. I think she might not have network coverage. Okay. Yes, sir. ठीक है। सो ये देखो अभी यहाँ पे वी कैन सी कि जैसे ये रतीश राज ने गुड मॉर्निंग लिखा, तो आई कैन राइट हियर कि हेलो, सो टुडे वी हैव सेशन, एंड इस पे क्लिक किया तो ये मैसेज ऐसे सबको चला जाएगा। तो ये ग्रुप में जैसे अपना सेम चैट ग्रुप है ना, वैसे ही आप चैट ग्रुप बनाओगे, एंड आपको इसमें कुछ इमेज भेजना है या यू नो एनीथिंग, आपको फोटो लेना है या एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली शेयर, पीडीएफ फाइल हो ये हो, तो कुछ भी आपको ये करना है तो आप डायरेक्टली इसमें आप भेज सकते हो ऐसा। तो ये दिस हाउ इट वुड वर्क। तो इसमें आपको चाहिए वैसे आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, एंड इट कुड बी जैसे आपका कोई कम्युनिकेशंस करने हैं पेरेंट्स के साथ, या आपको आपके जैसे प्राइमरी टीचर्स है आपके, तो आपको आप में यू नो यू वांट टू हैव कम्युनिकेशन अमंगस्ट योरसेल्फ, तो ये सब एक फॉर्मल हो सकता है, मींस यू नो दिस इज लाइक अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इसमें मेन चीज है कि नंबर्स भी किसी को एक दूसरे के नंबर्स भी नहीं दिखते। सो अभी हियर वी कैन सी नाउ ये जो अपने ग्रुप बनाया प्राइमरी पीटीए, तो इसमें टीचर्स तो अपने सब ऐड किए ही थे, एंड यहाँ पे नीचे स्टूडेंट भी दिख रहा है, यू कैन सी यहाँ पे स्टूडेंट, नीचे लास्ट वाला देखो स्टूडेंट है, तो जहाँ पे टीचर है वहां पे टीचर लिखा हुआ रहेगा, एंड जहाँ पे स्टूडेंट है वहां पे वो स्टूडेंट लिखा हुआ रहेगा। अब ये देखो जादव आदित्य स्टूडेंट। तो मीन्स आपको कोई जैसे आपको कोई ग्रुप बनाना है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, या यू नो आपको कुछ शेयर करना है, तो उसमें जैसे आपको कोई स्पोर्ट्स का है, तो यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ, तो वो दे कैन कम्युनिकेट अमंग्स देमसेल्व्स, एंड वो इजी कम्युनिकेशन हो सकता है।
इसमें ऐसा, ठीक है। तो या एनी क्वेरीज, डाउट्स इन दिस, एनी फीडबैक्स? So till now, whatever we have covered, two things. First is that how to import this, and one is this forum app. So, kuch feedback? Any? Have you understood? Someone can please mute and let us know. Sir, how to notify some messages in this group? In this forum app? Yeah. देखो, forum app में this is just like a WhatsApp. Okay. तो आपने जैसे कोई भी, जैसे आप उसके अभी जो भी इसके मेंबर्स है, अभी ये देखो, अभी ये ग्रुप अपन ने क्रिएट किया प्राइमरी टीचर्स का, बराबर। तो इसके जो मेंबर्स है वही इसमें मैसेजेस भेज सकते हैं या वही चैट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कोई भी मैसेज भेजा तो ये सब 25 पार्टिसिपेंट को सबको ये मैसेज दिखेगा। नहीं, मैसेज कहाँ भेजा, कैसे भेजा, मतलब जैसे मेरे को कुछ भेजना है कि टुडे, मैं इधर टाइप करूंगा ना, टुडे आई हैव लाइक यू नो एग्जाम या जो भी है कि, तो आप मैंने टाइप किया और सेंड कर दिया। तो ये तो टाइप करने का है क्या? हाँ, वो है ना नीचे है ये क्या टाइप मैसेज है ना। ओके। वो एक्चुअली वो अभी करंट अभी नया अपडेट आया है। अभी ये अपडेट में वो क्या हो रहा है, वो कीपैड से वो ये ढक रहा है ये सेंड मैसेज टाइप करने का। बट अभी नया अपडेट कल अपन ने रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें वो जो बग था वो सॉल्व हो गया इसमें, ऐसा। ओके, सो नोटिफिकेशन इज आल्सो देयर। ओके, ये जो ग्रुप है ना, अभी ये जो यही टीचर्स, अभी ये जैसे मैंने मैसेज भेजा तो ये सब टीचर्स को दिखेगा ऑटोमेटिकली, ये ग्रुप में जो भी टीचर्स है वो। और वो टीचर्स को किसी को कुछ और मैसेज भेजना है, जैसे अपन व्हाट्सएप पे चैट करते वैसे ये होगा, ऐसा। हेलो, यस 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 मिस्टर बुआ। सर इसका जो डेटा है वो क्लाउड पर सेव रहेगा या टीचर के मोबाइल पर सेव रहेगा? क्लाउड पे। जिस प्रकार से सर अपन व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट करते हैं उस प्रकार से अपनी यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करके एज अ व्हाट्सएप अपन इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, इसका ग्रुप क्रिएट करना एडमिन के पास है। मींस ऐसा नहीं कि मेरे को कल कोई 4 स्टूडेंट को मन में आया उनको ग्रुप बनाना, तो वो नहीं बना सकते। अगर टीचर एडमिन ने ग्रुप उनको बना के दिया कि जैसे आपका कोई एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, फुटबॉल है, गैदरिंग है, तो वो बच्चे अमंगस्ट उनके दे कैन हैव अ डिस्कशन, और उसमें 1-2 टीचर्स भी डाल दिए तो वो एक ऑफिशियली वो हो जाता है, ऐसा। ये सर काफी अच्छा एक नया मॉडल अपन इसमें ऐड किया है। काफी स्कूल से मुझे रिवर्स आ रहे हैं कि अभी वो लोग मोस्ट ऑफ यूज कर रहे हैं उनका मोबाइल व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप का जो डेटा है, व्हाट्सएप में सिर्फ प्रॉब्लम वही है कि क्या होता है कि नंबर शेयर होते जाते हैं सबके। हाँ, और साथ ही साथ जो डेटा रहता है सर, वो डेटा टीचर के मोबाइल पर ऐड हो रहा है। इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम काफी फेस करने का काम दे रहा है। इस वजह से ये जो अपन ने अपना फोरम ऐप का जो आया है, इसकी वजह से काफी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सर बहुत बढ़िया फीचर्स ऐड किए सर दीपेश सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये स्कूल से हमको फीडबैक आया था कि ऐसा ऐसा एक फीचर बना के दो, हमको भी अच्छा लगा, तो हमने ये सबके लिए ये रोल आउट कर दिया। नहीं, बहुत बढ़िया था सर, क्योंकि मुझे हर एक टीचर से वो कंप्लेंट था, सर मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है। ये फीचर्स देख के मुझे तो वो तो सब टीचर्स बहुत खुश हो जाएंगे सर, बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बनाया सर। Because sir, yes sir, could we share a video in this? वीडियो नहीं, अपन ने वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए। एक तो अपलोड इमेज फाइल्स का ऑप्शन है इसमें, एक फाइल्स का भी ऑप्शन है, वीडियोस भी भेज सकते, लेकिन लिमिट रहेगा साइज का, बड़े बड़े साइज नहीं हो सकेंगे इसमें। लाइक 5 MB तक का लिमिट दिया अपन ने, 5 MB का लिमिट दिया, तो यू कैन ये कर सकते हैं ना, वीडियो का लिंक भेज सकते हैं। तो सर ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं क्या? नहीं, प्ले स्टोर से कैसे डाउन, ये तो अपना टॉप स्कूल में है ना, ये उसमें लिंक है ये। ओके। ठीक है, तो विल प्रोसीड फर्दर
एनी अदर इसमें कुछ क्वेरी? तो ये अभी तक वी हैव एडेड दिस टू टीचर ऐप. यू कैन ट्राई फॉर टीचर्स फॉर फ्यू डेज एंड इन नेक्स्ट थोड़े दिनों में ये स्टूडेंट के लिए भी विल बी रिलीजिंग आउट. पहले हमने बोला कि लेट्स ट्राई इंटरनल टीचर में अपन ट्राई करके देखेंगे इसको कैसा क्या कुछ बग्स आ रहे हैं क्या, बिकॉज न्यू फीचर है तो वी नीड टू ट्राई इट. आप ट्राई करो टीचर्स के साथ कैसे वर्क हो रहा है एंड देन विल गो विद द स्टूडेंट्स. ओके, ठीक है. सो एनी अदर क्वेरी ऑन दिस और I'll proceed to next part. Proceed further, sir. Okay, thank you. So next feature is we have added is online store. Okay, तो अभी इसका ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट करंट सिनेरियो में तो नहीं होगा, बट आगे इसको आप यू कैन थिंक अबाउट इट. तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स को अपन ये देते हैं फर्स्ट टाइम तो अपन सब बांट देते हैं, लेकिन बाद में उनको बेल्ट चाहिए रहता है, बुक्स चाहिए रहते हैं या जो भी है. तो उसके लिए हमने क्या किया है कि वी हैव डायरेक्टली गिवन ऑप्शन टू पेरेंट्स. वो वहां से स्टोर पे जो भी अपना इन्वेंट्री है वो उनको दिखेगा. दे कैन बाय इट, पे ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी जैसे आपको ऑप्शन देना है एंड वो स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं. आई शेयर यू स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. So now again I go to now this is a parent app. Okay, parent app login किया मैंने. तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी हैव एडेड कॉल्ड स्टोर. तो अपन जब इन्वेंट्री ऐड करते हैं तो there's a उसमें ऑप्शन रहता है कि whether it's for student कि ये. तो अगर आपने ये फॉर स्टूडेंट करके अब मैं वो भी आपको एडमिन पार्ट भी इसका शॉर्ट में दिखाता हूँ. तो इसमें स्टूडेंट को आपने जो भी आइटम्स डाले हैं टी शर्ट से आपके या वॉट एवर एनी काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, तो स्टूडेंट कैन डायरेक्टली वो ऐड कर सकता है कार्ट में. यहाँ पे सब आउट ऑफ स्टॉक ही है, तो वो इधर कार्ट में ऐड करेगा एंड मैं इसका एक आधा तो और वो यहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करके वी कैन आस्क हिम, ऑनलाइन पेमेंट कर देगा और वो उसका उनको ईमेल और वो नंबर जनरेट हो जाएगा रिसीट का एंड वो इन्वेंट्री में जाके बोल देगा कि बाबा मेरा ये इन्वेंट्री ये नंबर है और मेरा वो आइटम दे दो. ऐसा दिस इज व्हाट वी हैव डन इट. इसका एडमिन पार्ट थोड़ा शॉर्ट में दिखाता हूं. How the items will be delivered as our own cost by own? डिलीवर्ड आपको करना है घर पे कि उनको स्कूल पे जब आएंगे वैसे कलेक्ट करना है, वो आपको मींस दैट स्कूल हैज टू डिसाइड कि कैसे करना है आपको. या आपको डायरेक्टली वेंडर को ये ऑर्डर वेंडर को आप डायरेक्टली पास ऑन कर दोगे, वेंडर प्रोवाइड करेगा. सो दैट स्कूल हैज टू डिसाइड हाउ नीड टू गो अबाउट इट. ऐसा. तो इसमें अभी आपको सेटिंग्स में देयर इज इन्वेंट्री ऑप्शन, इन्वेंट्री सेटिंग्स. ओके, तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ऐड इनिशियल स्टॉक. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई विल ऐड द प्रोडक्ट कि जैसे आपका कोई जैसे हाउस टी शर्ट है, इसका वेंडर कौन है, प्रोडक्ट नेम कि जैसे हाउस टी शर्ट फॉर से ग्रीन हाउस है साइज L. प्रोडक्ट डिटेल्स को परचेज प्राइस लिख दो 200, सेल प्राइस 250, स्टॉक 10. और आपको ये डालना है कि अगर आप फॉर स्टूडेंट करोगे तो ही वो अवेलेबल होगा. अगर आपने ये फॉर स्टूडेंट नहीं किया तो वो स्टूडेंट ऐप में अवेलेबल नहीं होगा. ऐसा. अगर आपको ये स्टूडेंट के लिए अवेलेबल करना है तो आपको ये फॉर स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड फिर आप इधर उसके फोटोज डाल सकते हो, जैसे जो भी आपको फोटोज डालने हैं उसके प्रोडक्ट के. So you can add whatever products, whatever images you want, you can add it. इसको सबमिट कर दिया. ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट ऐड हो गया. Here you can see ग्रीन हाउस. ये अगर मुझको एडिट करना है इसका इमेज और नए इमेज ऐड करने हैं या इसको निकालना है तो अपन इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड करोगे एंड फिर इसमें क्या होगा कि इसका आपका पूरा इसमें इन्वेंट्री भी मैनेज होगा पूरा ऑटोमेटिकली.
तो वंस आई प्लेस एन ऑर्डर, वो यहाँ पे मुझे आएगा एडमिन को कि ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, और वो जब ओके करेगा तो ऑटोमेटिकली अभी ये 10 स्टॉक है तो इसका आइटम भी एक कम हो जाएगा, 9 आइटम हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली आपको पूरा इसमें इन्वेंट्री मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और आपको समझेगा कि उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है या वो कैश पे करने वाला है, तो वो सब आपको वहां पे समझ में आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये देखते हैं। और एक चीज अपन ने ऐड किया इसमें कि पहले कैसे था कि जब आप इन्वेंटरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको सिंगल सिंगल आइटम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, कि जैसे आपके बुक्स है तो 20 बुक्स है तो अलग अलग। अभी अपन ने क्या किया कि यू कैन क्रिएट योर ओन पैकेजेस, फर्स्ट ग्रेड का पैकेज, तो उसमें जो भी सब पैकेज है आपने ऐड कर दिया एक बार, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पैकेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका इन्वेंटरी ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव एडेड अ न्यू फीचर की आप यू कैन डिस्ट्रीब्यूट पैकेज वाइज। तो इधर जब आप वाउचर्स में जाके मेन्यू से इन्वेंटरी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे परचेज करना हो, ये परचेज का एंट्री किया अपन ने तो ऑटोमेटिकली उसका स्टॉक बढ़ जाएगा। एंड व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट इट तो आप डायरेक्टली इसको एज अ पैकेज वाइज भी अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और माइक्रोफोन ही बंद तो भारती बने इज स्पीकिंग। So I think these are the Sir, I muted everyone. There's some noise. So this is how you can inventory भी online purchase कर सकते हैं। So once you start using it, अगर आपको फिर कहीं you are getting stuck, then you let us know. But it's a good feature. But अभी I don't know current scenario में इतना उसका useful कितना how much useful this is, we need to check. But you can आगे पीछे इसको आप you can plan using this. Okay. So any query on this? Any query, any feedback, any suggestions? तो यहाँ पे ऑर्डर्स में जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आई विल ऐड टू कार्ट, कार्ट पे ऐड किया, एंड देन आई क्लिक ऑन दिस, और फिर इसको पे नाउ करेंगे अपन। तो इसको ऑनलाइन पेमेंट वी कैन पे, मेक एन ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी, जैसे अपने को चाहिए वैसे अपन इसको वी कैन गेट इट डन। ठीक है, ओके, एनी क्वेरी ऑन दिस? No query? Okay, fine. So now next part is assign roll numbers. ये पहले एक बार लिया हुआ था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। Assign auto assign roll numbers and bulk update
कि आपको कुछ भी GR नंबर या वो बल्क अपडेट करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो फॉर दैट यू नीड टू गो टू रिपोर्ट्स में जनरल रजिस्टर में, तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन रोल नंबर का। तो जैसे आपको रोल नंबर असाइन करना है तो आपने एकेडमिक आईडी सिलेक्ट किया, क्लास सिलेक्ट किया, फर्स्ट डे, जेंडर, तो आपका जेंडर का प्रायोरिटी क्या है कि मेल पहले चाहिए आपको, फीमेल पहले चाहिए कि नो प्रायोरिटी, कि आपको सपोज जेंडर वाइज प्रायोरिटी नहीं है आपके कि हम मिक्स हो गए रोल नंबर्स कि सिक्वेंशियली वैसा, तो वो वैसा करेगी। अभी कोई कोई जगह क्या होता है कि पहले मेल होता है फिर फीमेल होता है रोल नंबर वाइज ऐसा। तो जैसे आपका है या आपका सपोज नो प्रायोरिटी ऐसा कुछ नहीं है तो वैसे आप डिसाइड कर सकते हो। फिर नेम प्रायोरिटी, तो नेम आपको सिर्फ फर्स्ट नेम वाइज ये करना है कि लास्ट नेम वाइज करना है। तो आपने ये फर्स्ट नेम वाइज, आई थिंक CBSE स्कूल में ये चलता है ज्यादा, तो फर्स्ट नेम वाइज, और ये असाइन कर दिया। ओके तो अभी ये देखो ये ऑटोमेटिकली अभी जैसे ये फर्स्ट नेम वाइज, जैसे ये आदित्य, आराध्या, तो इनको ये रोल नंबर असाइन हो गए 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे, ये दिस इज नाउ फर्स्ट नेम वाइज ऐसा कि स्टूडेंट के नाम वाइज। अगर आपने यहाँ पे लास्ट नेम वाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट नेम वाइज इधर दिखेगा। तो अभी ये सरनेम वाइज आ रहा है जैसे A B दैट वे। तो एंड यू कैन सी क्लिक ऑन अपडेट, तो ऑटोमेटिकली वो रोल नंबर्स अपडेट हो जाएंगे ऐसा। सो बस ये एक बार सिंपल प्रोसेस है, ये आपने कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड सेकेंड इज मास अपलोड, कि जैसे आपको डिविजन्स अपडेट करने हैं स्टूडेंट्स के या मोबाइल नंबर्स या GR नंबर, तो वो अभी 2-3 फीचर्स ही है, बट वी आर एडिंग लॉट ऑफ फीचर्स हियर कि आप सब बल्क अपडेट कर सकते हैं। जैसे अब आपको डिविजन्स चेंज करने स्टूडेंट के, तो आपने डिवीजन क्लिक किया स्टूडेंट स्पेसिफिक एंड सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड के सब स्टूडेंट दिख रहे हैं, ऑल क्लासेस, फर्स्ट A के, फर्स्ट B के, सब दिख रहे हैं। एंड अगर मुझे किसी का सिर्फ चेंज करना है, तो सपोज आई वांट हिज टू चेंज फ्रॉम फर्स्ट A टू फर्स्ट B, तो मैंने फर्स्ट B सिलेक्ट कर दिया और इसका ये हो गया। तो बस इसका भी सिर्फ जिसका चेंज करना है उसको आपको सिर्फ ये ऐसे कर दो, और जिसके फर्स्ट B से फर्स्ट A करना है तो फर्स्ट A ऐसे कर दो, ठीक है। तो बस उतना ही वो हो जाएगा बस ऐसा। दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। मास अपलोड से आप यू कैन चेंज डिवीजन। यहाँ से वी आर गिविंग यू अदर ऑप्शंस इन नेक्स्ट अपडेट हियर। यू कैन अपडेट GR नंबर, एडमिशन, मोबाइल नंबर्स, आधार नंबर, तो ये सब लॉट ऑफ थिंग्स यू वुड बी एबल टू अपडेट इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। एंड असाइन रोल नंबर, यू कैन असाइन रोल नंबर। असाइन एक बार किया तो अच्छा रहता है, और उसका नाम क्या है, उसके पापा का नाम? बाद में आपको इजीली हो जाता है ऐसा, ठीक है। सो दिस आर द अपडेट्स। सो एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस, any requirement you have, you can let us know. Yes. Also, we have created a Telegram channel, Prisms.com. So I think if you can all add to this, you can join this Telegram. So whatever new updates related to education sector or new updates related to top school, we will be posting it over here. Also, there are a lot of new things, new material which keeps on coming, for sharing purpose. So we can all share it here. So here on Telegram, there's no limit of members and all this, so it becomes easier to share material. So recently, now there was one good thing I came across. So I just thought, now as everything online is going on, so now live worksheet. So I was just checking this live worksheet. Now it's a very good website where you can give a lot of interactive tools for the kids. So here, as you can see, the elephant is happy, sad, and so the elephant is happy, lion is dangerous. So this way, and the best thing about it, it also corrects. It would give you the
Rabbit is fast. Yes. Scale. Okay, and once I finish it, it will ask me to check my answers, and it would automatically give me marks also, 8 out of 10. So and there are a lot of sheets available here, and it's also free of cost. So this kind of things we keep on coming across. So it becomes easier for us to share this, on a group, on a Telegram channel or something, that way. So that's why we thought that let's have a group where we can share this. So all your teachers, you can share it with your teachers also to join this channel, Telegram /prisms.com. And also this link, this is a good liveworksheets.com. You can use this to share interactive worksheets. So there are a lot of worksheets available here. Okay, so I think I have covered whatever we had to share today. So if any queries, you can ask us, you can let us know. हेलो Yes. सर एक्चुअली आपने बोला था मास अपलोड हम जीआर नंबर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए कैसे करना है? मतलब मास अपलोड फोटो का पता है मुझे, बट जीआर नंबर के लिए सेम प्रोसीजर है क्या? वो जीआर नंबर का ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 3-4 डेज में वो जीआर नंबर भी आ जाएगा वहाँ पे। ओके 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 सर, मतलब उस टाइम पे सेम अभी वहाँ पे डिवीजन ही वर्क हो रहा है। हाँ, सेम प्रोसेस ही करना है। यस। ओके 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 सर। हेलो। यस सर, जब हम असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं, वो जितना भी हमारे फोन में डेटा होता है वो सब बताता है। वो जस्ट चूज फाइल करते हैं, कुछ ऐसे सर्च इंजन उसमें कर दीजिए ना, ताकि हम पर्टिकुलर नाम देख के सीधा वो फाइल खुल जाए। वो जितनी भी फाइल्स होती है 100-200 सब में हमें चेक करना पड़ता है नाम। यानी यू मीन टू से कि आप जैसे हम क्रिएट असाइनमेंट करते हैं तो कुछ फाइल डालनी हो, एक पिक तो ठीक है वो गैलरी से चूज करेगी, तो हम जो भी नाम देते हो, जितनी फोन में 100-200 फाइल्स होती है उनमें सब में चेक करना पड़ता है कौन सी हमने क्रिएट की थी उस नाम से। आप इमेज अपलोड करते हो, पीडीएफ अपलोड करते हो आप? हाँ, तो हाँ पीडीएफ हो गया, वही अपलोड करते हैं ना असाइनमेंट्स में। कुछ ऐसे सर्च का होना चाहिए कि हम सीधा नाम दे तो सीधा वही फाइल सिलेक्ट हो जाए, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और बच्चों को भी बहुत मुश्किल आ रही। वो भी बोलते कई बार वो गलत किसी सब्जेक्ट का होता है, किसी सब्जेक्ट का डाल देते हैं। बराबर। और सर एक मैथ का मेरे को पूछना था आपसे। जैसे वर्ड में होता है ना कंट्रोल और प्लस, हम प्रेस करते हैं तो हमारे मैथ के सिंबल सब ओपन हो जाते हैं, तो इसमें नहीं हो रहा है। क्विज में मैं एक्सपोनेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो नहीं डाल पा रही हूँ मैं। किसमें? क्विज में वो है ना ऑप्शन वहाँ पे? नहीं, उसमें सिंपल मैथ के तो हो जाते हैं मगर एक्सपोनेंट वगैरह वो सब नहीं हो पा रहे हैं। आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो वहाँ पे। बस वो जैसे मैं कॉपी करती हूँ मगर उसके बाद फिर चेंज, अगर ऐसे चेंज हो जाता है, पिक आ जाती है अगर पिक खींच के करो तो, मगर वैसा नहीं आता उधर से। वर्ड से अगर मैं कॉपी पेस्ट भी करूँ तो वो चेंज हो जाता है। तो आप उसको क्या करो, उसको आप इमेज करके डाल सकते हो ना वहाँ पे। हाँ, इमेज ही डाल, ठीक है सर। इमेज डाल दो ना वहाँ पे। और सर हम क्विज चेक नहीं कर सकते जो बच्चों ने की, सिर्फ मार्क्स दिखते हैं कि किसने क्या गलत किया। आता है ना? कौन से स्कूल से आप? SVNS पुणे। क्विज चेक करनी हो अगर हमें। आप LMS क्विज लेते हो कि कौन सा क्विज लेते हो? LMS लेते हो कि वो क्या बोलते हैं वो QSM
QSM भी दिखता ही है ना क्वेश्चन आंसर, उनके क्वेश्चन आंसर हाँ सब। सर, व्यू किया तो QSM में भी डिटेल में दिखता है, और क्विज रिपोर्ट में नाम के सामने डिटेल पे क्लिक किया तो भी डिटेल में दिखता है। अच्छा, डिटेल में दिखता है सर? हाँ दिखता है, दिखता है। मैं दिखाऊंगी आपको। एक बार दिखाना। तो ये यहाँ पे व्यू रिजल्ट्स। फोन लावणे ठीक आहे बाबा। म्यूट स्पीकिंग स्टॉप वीडियो। तो यहाँ पे देखो, हियर वी कैन सी कि स्टूडेंट का ये आता है, जैसे स्टूडेंट का नाम है, एंड वंस वी क्लिक ऑन व्यू, तो ये हर स्टूडेंट का वो क्विज है। जैसे अभी ये क्विज 4 लोगों ने दिया है, तो इसका भी उसका देखो, हाउ मेनी कलर्स आर रिफ्लेक्टेड इन रेनबो, वी आंसर प्रोवाइडेड 7, करेक्ट आंसर 7, ऐसा। तो उसने आंसर क्या दिया वो इधर दिख रहा है, 7 दिया है उसने आंसर, ऐसा। अभी अभी अपने मुझे राइट डाउन एन एसे ऑन रेनबो एंड शेयर योर पेज, तो ये उसने फाइल अटैच किया, तो इसको अपन ओपन करके देख सकते हैं कि क्या भेजा है उसने। ओके सर, थैंक यू। ऐसा, ठीक है। Yes. Any other queries? हेलो सर, अभी आपने लाइव का ही शो किया था। लाइव का क्या चीज? लाइव असाइनमेंट का भी आपने शो किया था ना, तो सर टीचर्स किस प्रकार से स्टूडेंट को शेयर कर पाएंगे? असाइनमेंट मॉड्यूल से 2 ऑप्शन है ना असाइनमेंट का, एक तो असाइनमेंट मॉड्यूल है और एक LMS असाइनमेंट। असाइनमेंट से ये लाइव जो अभी आपने दिखाया लाइव वो वर्कशीट्स का बोल रहे हो क्या? हाँ, लाइव वर्कशीट, यस सर। ओके, अभी ये तो एक टूल है जो मैंने आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एंड मुझे ये दिखा, एंड ये अभी इसमें आप चाहिए तो आप ये वर्कशीट्स भी आप डायरेक्टली उसमें LMS में ऐड कर सकते हो आप। जैसे अभी ये वर्कशीट है, ठीक है, तो यू कैन जैसे इसमें ऑप्शन है देखो, डाउनलोड फाइल है, PDF फाइल है, ऐड टू माय, यू कैन ये लिंक भी डायरेक्टली भेज सकते हैं। ये जो लिंक है ना, ये लिंक भी सर ये डाउनलोड PDF फाइल करते हैं तो अपन फोरम ऐप से भी इसे शेयर कर पाएंगे? अभी देखो, इतना में फोरम से शेयर तो हो जाएगा, बट वो वर्क होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, ये PDF में वर्क होगा कि नहीं होगा, इतना मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। बट मींस वही है कि अब नहीं हो तो ये लिंक्स डायरेक्टली आप भेज सकते हो ना। ये जो लिंक है, अभी जैसे स्टूडेंट को, जैसे छोटे बच्चों को ये लिंक भेज दिया जो कि ये आज को आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करना है, ऐसा।
तो ये जो लिंक है लाइव वर्कशीट इसका, ये लिंक डायरेक्टली स्टूडेंट को कॉपी कर स्टूडेंट को ऐप पे भेज दिया, वो ओपन करेंगे डायरेक्टली वो वर्कशीट ओपन हो जाएगा उनके लिए। ये देखो ये डायरेक्टली वर्कशीट ओपन हो गया। तो और उनको वो स्टूडेंट फिर वो सॉल्व करके उसका उनको बोल सकते स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजो कहीं पे भी, इधर फोरम में या व्हाट्सएप पे या ऐसा, तो उनको वहाँ पे मार्क्स भी वो शेयर कर सकते हैं टीचर्स के साथ ऐसा। तो मेरा पर्पस क्या था ये दिखाने का कि ये तो दिस इज गुड टूल आल्सो, लाइव वर्कशीट्स आप सब यूज कर सकते हो, बट एंड कि you can all join this Telegram channel. So whatever new features will come up, new updates, नए जो भी education field में नया नया क्या हो रहा है, so all we can share in the group ऐसा। Yes. So सर ये लाइव वर्कशीट अगर ये लाइव वर्कशीट अगर ऐप में अटैचमेंट हो पाए तो काफी हेल्प हो पाएंगे टीचर्स को ये एग्जाम्स के लिए। ऐप में चलता ही है ना, आपने लिंक भेज दिया ऐप में, देखो सिंपल से है, ये अभी ये लिंक है, ये मैंने अगर ऐप लिंक अभी ये लिंक मैंने भेज दिया, अभी देखो मैं अभी ये भेज दूंगा। यस यस, और मैं मेरे हाँ वो तो वो ठीक है, नोटिफिकेशन हो जाएगा। सर ये इसका एक और ऐसा था, ये स्टूडेंट री एडिट कर क्या क्या बोल रहे हो? ये स्टॉप शेयर किया, देखो मैं मेरा मोबाइल शेयर करता हूँ स्क्रीन। अभी ये देखो ये मुझे ऐसे पॉपअप भी आ गया कि liveworksheet.com बराबर ऐसा, मेरा मोबाइल दिख रहा है ना। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं लाइव वर्कशीट पे, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है liveworksheet.com, इसको मैंने क्लिक किया था ये ओपन हो जाएगा। और वो मोबाइल से वो सॉल्व करके उसका वो ये कर सकते हैं डायरेक्टली, सभी नंबर्स है। तो ये नंबर्स यहाँ पे ये ड्रैग करना है, ठीक है। सो दिस हाउ इट इज, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ऐसा, ओके। यस, सो एनीथिंग, एनी अदर क्वेरीज? Nothing? Excuse me sir, hello yes. sir, yes. ये जो लाइव वर्कशीट है तो ये सिर्फ प्राइमरी के स्टूडेंट के लिए है या बड़े स्टूडेंट के लिए भी है कैसे लाइव वर्कशीट्स? मैम ये तो कैसा है, ये कुछ अपना नहीं है, अपने तो ये सिर्फ देखा, अभी मुझे भी आप भी इस पे एक्सप्लोर करो थोड़ा क्या है कैसा है, आई डोंट नो, मैंने ज्यादा इसमें देखा, थोड़ा देखा था मैंने इसमें, बट आप एक्सप्लोर करो इसमें और क्या क्या है कैसे नहीं क्या है। ये तो गूगल पे है, यूट्यूब पे। क्या बोल रहे हैं? This is very useful. मैं यूज कर रही हूँ ये लाइव वर्कशीट। ओके ओके। इसमें क्या है कि आप एक अगर वॉइस इज नॉट क्लियर आई थिंक। हेलो अश्विनी मैम। हाँ सर, मैं यूज कर रही हूँ ये लाइव वर्कशीट्स जो है वो बहुत यूजफुल है। तो वहाँ पे जो लिंक दिया है उन्होंने नीचे, वो अगर हमने कॉपी किया तो भी चलता है, नहीं तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे व्हाट्सएप शेयर थ्रू व्हाट्सएप आता है ना, वहाँ से व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ, बच्चे वो सॉल्व कर लेते हैं। बराबर, राइट राइट राइट, यस। और वो सारे क्लासेस के लिए है, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी आल्सो। ओके ओके ओके, ग्रेट। You can explore this and you can make use of this. तो अपने को क्या करना है कि we need to make use of our ecosystem, कि एक दूसरे को अपन हेल्प कर सके, मींस किसी को नया समझ में आया तो we can share with them, so all get benefited through this.
Okay, fine. So anything else to discuss today? Any queries? हेलो। Yes. यस सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग था कि जो स्टाफ हमारे मतलब टीचिंग स्टाफ है, सपोज अगर मुझे मंथ वाइज उनका ग्राफ देखना है, वो एलएमएस में क्या कर रहे हैं लाइक, या फिर एलएमएस का तो हम मंथ वाइज देख सकते हैं क्या, लाइक एलएमएस में वो अपडेट क्या कर रहे हैं मंथ वाइज या फिर वीक वाइज? अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है फीचर। हाँ हाँ। डिस्कस करता हूँ और हमारी टीम से कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या उसमें। हाँ मतलब जैसे हम लोगों ने देखा है लॉग शीट का उसका रिपोर्ट आ जाता है, वहाँ पे हम लोगों को पता चलता है उन्होंने डेली बेसिस पे लॉग शीट फिलअप की है या नहीं। ओके। अच्छा, आपने लॉग शीट यूज करना चालू कर दिया? हाँ यस। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो लॉग शीट वो फिलअप कर रहे हैं या नहीं उसका रिपोर्ट तो आ जाता है वहाँ पे, बट एलएमएस बराबर है। पे लोग क्या अपलोड कर रहे हैं क्या नहीं राइट। कर रहे हैं, या फिर डेली बेस पे है या मंथ वाइज अगर हम रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो वो टाइम पे वो पॉसिबिलिटी कैसे होगी अगर है या नहीं? ठीक है, मैं एक बार वो डिस्कस करता हूँ टीम के साथ कैसे क्या कर सकते हैं, एंड विल सी व्हाट कैन बी डन। ओके ओके। एंड करंटली सर, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, बट हाँ क्योंकि मैंने भी चेक किया है एक्चुअली, तो अब यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड डेट ओनली दिख जाती है, मतलब उन्होंने वो कोर्स कब लास्ट ओपन लास्ट किया। मॉडिफाई किया, बराबर हाँ, बराबर। बट उसमें ऐसे कुछ नहीं दिखता है कि लाइक लास्ट मंथ में उन्होंने ये चीजें अपलोड की है और ये मंथ में उन्होंने ऐसे ऐसे अपलोड किया है, मतलब लाइक उनका ग्राफ एक्चुअल में अच्छा है या फिर वो कुछ ओपन ही नहीं कर रहे या फिर कुछ डाल ही नहीं रहे, ऐसा कुछ हमें समझ में नहीं आता है। राइट राइट राइट, चलेगा ना। मैं एक बार डिस्कस करता हूँ टीम्स के साथ कि इसमें क्या कर सकते हैं, एंड विल देखते हैं कि आप विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस। ओके। एंड सर वन मोर थिंग ये था कि जो हमारा सॉरी सेशन लॉग है लाइक, टाइम टेबल का ऑनलाइन हाँ टाइम। हाँ स्टार्ट सेशन लॉग है एक्चुअली, उसके रिगार्डिंग था कि स्टार्ट सेशन लॉग में वहां पे सिर्फ ये दिखता है कि उन्होंने स्टार्ट क्लास बटन पे क्लिक कब किया था, वो सिर्फ टाइम स्पैन दिखता है राइट, बराबर। हाँ, बट उन्होंने सस्टेन कब तक की है वो क्लास, लाइक ड्यूरेशन उन्होंने कितना टाइम उस पर स्पेंड वो किया नहीं है। समझ पाएगा ना मैडम, वो उसका हाँ देखो, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी व्हाट वी कैन प्रोवाइड वही अपन प्रोवाइड कर सकते हैं ना उसमें वैसा। राइट राइट राइट, बट एक्चुअली सर मेरा ये क्वेश्चन था यहाँ पे एक और एक था टाइम टेबल मॉड्यूल में एक क्लास वाइज या फिर कुछ तो भी है वहाँ पे सेशन लॉग में ही है। इधर ये टाइम टेबल ओपन किया, टाइम टेबल में यहाँ पे है ये नया ऐड किया है क्लास वाइज टाइम टेबल, तो यहाँ पे आपको क्लास वाइज टाइम टेबल दिख जाएगा ऐसे हाँ, वैसे। तो उसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प हो सकती है क्या लाइक? क्या उसके लिए, क्या इसके रिगार्डिंग क्या? मतलब उन्होंने कब, अभी मुझे कैसे होता है अभी स्टार्ट क्लास जो सेशन लॉग है वहाँ पे सिर्फ वो अगर रात को भी ऑन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पे टाइम दिख जाता है, बट वो एक्चुअल में क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे उसका रिकॉर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा? देखो अभी आपको यहाँ से स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट कितने बजे किया वो समझ में आता है ना आपको। यस, बट अगर उन्होंने स्टार्ट करके वो क्लास छोड़ दी, ड्रॉप कर दी, तो वो तो हमें समझ में नहीं आएगा। आप ज्वाइन करके देख सकते हो ना कभी कभी बीच बीच में। तो सर अगर हम लोगों के पास लाइक, हाँ ज्वाइन तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, अब तक हम वैसे ही कर रहे थे लाइक मास्टर टाइम टेबल में जाओ एंड ज्वाइन करो अकॉर्डिंग टाइम टेबल, बराबर। बट अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कभी कभी तो उस टाइम पे हम अगर चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ स्टूडेंट के पे अटेंडेंस के से भी आप यू कैन ये कर सकते हो ना उसके, कि स्टूडेंट भी आप देख सकते हो ना कि स्टूडेंट अटेंडेंस में स्टूडेंट कैसे कैसे ज्वाइन हो रहे हैं वो सेशन में ऐसा। मतलब वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना थोड़ा सा कि लाइक अगर कैसे हम लोगों को आप ही बोलो, आप हमको सोल्यूशन दो कि हाउ कैन वी डू इट, बिकॉज हम तो क्या करते हैं कि जब टीचर ने हाँ स्टार्ट किया तब हाँ हम उसको जूम पे लेके जाते हैं, बराबर ना, यस यस या गूगल पे, तो उसके हाँ, बाद हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दिस। मतलब अगर वहां पे उन्होंने वो टाइम पे अगर वहां पे कितना ड्यूरेशन वो स्पेंड करते हैं अगर वो चीज हमें पता चल देखो जाती तो इसमें सिंपल सिंपल बात है, व्हाट आर वी डूइंग इज, एक बार वो यहाँ से ज्वाइन किया कि वो जूम पे जाएगा, वो जूम कुछ यस अपने को डेटा देता नहीं कि वो हाँ कितने देर वो ये करता है, तो इसलिए हम्म। वो नहीं पॉसिबल करना। ओके, मतलब अगर उनका अगर बैकडेटेड हमें चेक करना है रिकॉर्ड तो फिर उसके लिए क्या है, मतलब सारे टीचर्स आपका इंडिविजुअली तो हम चेक नहीं कर सकते ना सर हर एक पीरियड का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर 24 भी टीचर्स नहीं, आपको अभी क्या करना, रैंडम आप देख सकते हो, रैंडम फीडबैक ले सकते हो, रैंडम आप सेशन ज्वाइन कर सकते हो, तो इसमें रैंडम पे ही रहते हैं ना थोड़ा।
रैंडम आपको दो तीन आपने चेक किए नहीं सर, वो एक्चुअली सैलरी के अकॉर्डिंग भी रहता है ना कभी कभी, क्योंकि अगर उन्होंने कितने क्लासेस लिए हैं वो इफेक्ट करता है सैलरी पे, तो फिर उनका जो है वो रेशियो हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे? डेली बेसिस पे तो हम उनके अटेंडेंस नहीं ले रहे, क्योंकि वो यहाँ पे आ ही नहीं रहे। जो भी है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिर घर से पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रिकॉर्ड मैनेज करना। तो इसकी रिगार्डिंग मेरा कंसर्न यही था कि अगर कुछ है पॉसिबिलिटी है कि कहाँ से तो हम रिकॉर्ड एटलीस्ट ले सकते हैं, तो आप मुझे गाइड कीजिए। आई फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड देन मैं वो सारी चीजें पुट ऑन कर दूंगी इसमें। हेलो। जी सर। मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा वीक है। ओके, तो वो देखना पड़ेगा मैडम। आई डोंट नो इसका क्या सोल्यूशन है, बट करंटली वैसा तो कुछ सोल्यूशन है नहीं उसके लिए कि यू नो ऑटोमेटिकली वो समझ में आए कि कितना टाइम तक वो सेशन चल रहा था, ऐसा। यस यस, या फिर ऑन टाइम, मतलब अभी स्टार्ट टाइम तो हमें समझ में आता है। जिन जिन लोगों ने वो भी मतलब जब स्टार्ट सेशन लॉग कब एक्टिवेट है, जब वो क्रोम से लॉगिन करेंगे एंड वहां से स्टार्ट करेंगे। मतलब मोबाइल से अगर वो स्टार्ट क्लास करते तो वहां पे नहीं आता है, ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो वहां से अभी तो फिलहाल नहीं आता है, स्टार्ट सेशन लॉग अभी तक एक्टिव नहीं है फॉर मोबाइल। हेलो हेलो। हाँ, वो ऐप से नहीं आ रहा ना, ऐप से रिकॉर्ड नहीं आ रहा ना, ऐप तो से वो नहीं मैं रिकॉर्ड ओनली अगर वो क्रोम से अगर लॉगिन करते हैं वहां से स्टार्ट क्लास करेंगे तो आएगा। नहीं, मैं जो ये जो ऐप से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका भी लॉग में करवा देता हूँ कि नेक्स्ट अपडेट 4-5 दिन में। ओके 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 सर। यानी ऐप से भी अगर वो स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका भी वो वहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट कब हुआ। ओके ठीक है। Okay, yes. Any other queries? Anyone? हॅलो अश्विन ने Yes, hello. आपण इकडे हॅलो दिसतो का द्यायला? सर, ये स्टूडेंट का जो भी ऑनलाइन क्लास में जो अटेंडेंस होता है स्टूडेंट सेशन लॉग में अपन चेक करते हैं। हेलो हाँ, तो सर ये स्टूडेंट सेशन लॉग का टीचर को रिपोर्ट लेने के लिए उन्हें मेन डेस्कटॉप का ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये सर ये स्टूडेंट सेशन लॉग का जो है मॉडल, वो अपने ऐप में अगर आ पाए तो वो वहाँ पर भी चेक कर पाएंगे उनके क्लास में कितना अटेंडेंस है स्टूडेंट का। ठीक है, मैं फीडबैक देता हूँ। ये हो तो सब सकता है, लेकिन वो कितना प्रायोरिटी क्या क्या है वो उसके हिसाब से अपने को थोड़ा करना पड़ेगा। वैसे डिस्कस करता हूँ मैं। अभी बेसिक मैं कर रहा हूँ कि मेन डेस्कटॉप से उन्हें प्रिंट आउट ऐसे तो अभी इसको मोबाइल ऐप पे भी लॉगिन करने को ये भी मिस क्रोम पे भी वो लॉगिन करके रख सकते हैं ना सब फीचर्स। हाँ क्रोम, हाँ क्रोम पर हो रहा है सर, क्रोम पर हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है, स्टूडेंट सेशन लॉग शो हो रहा है और स्टूडेंट भी शो हो रहा है। उनका वो एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें अगर हो पाए तो उनको इजीली डेली का रिपोर्ट मिल जाएंगे। फाइन, ठीक है सर, अगर पॉसिबिलिटी होती है तो एक बार चेक। यस, ओके, ठीक है, करवाता हूं, बात करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेरीज? नो सर। Chalo then, thank you all for taking time off your busy schedule, and so have a great day, and and also to join the Telegram group so that we can have we can share all this communications. Okay. Thank you all for participating. Thank you. Okay. Thank you sir. Thank you so much. Take care sir. Thank you. Thank you. Thank you sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, one query I have. जब हम फोन से असाइनमेंट्स देते हैं, मोबाइल से मैं असाइनमेंट क्रिएट करती हूँ,
जो असाइनमेंट्स का ब्लॉग है, और मेरे जब मैं लैपटॉप से ज्वाइन करती हूँ अपने उसमें, मगर वहाँ असाइनमेंट में वो कुछ भी दिखा नहीं रहा है असाइनमेंट्स। वहाँ कोर्सेज में जाके वही असाइनमेंट में चेक कर रही हूँ, और जो मैंने असाइनमेंट्स क्रिएट किए कुछ भी नहीं दिखा रहा है वो। एक्चुअली फोन पे चेक करना है। कौन सा स्कूल है मैडम आपका? SVNS पुणे। SVNS पुणे ना। तो आपने ये असाइनमेंट मॉड्यूल यूज करते हो ना आप? हाँ, असाइनमेंट्स है ना, जो टैब ऐसे मोबाइल में जो आइकन है असाइनमेंट, उधर से क्रिएट करती हूँ मैं, क्रिएट असाइनमेंट्स करके। ठीक है, फोन पे तो दिख रहा है व्यू असाइनमेंट्स तो। हाँ। मगर जब मैं टैब में खोल के मैं चेक करना चाह रही हूँ, तो असाइनमेंट्स जो कोर्सेज के अंडर ही आइकन असाइनमेंट, ऊपर तो कोई मेरे को ऐसे दिख नहीं रहा है। जैसे टीच है, क्विज रिपोर्ट है, नोटिफिकेशन है, उसमें तो नहीं असाइनमेंट का कुछ भी दिख रहा है मेरे को। उसमें वो क्लास टेस्ट करके जो है ना, क्लास टेस्ट उसके अंडर आता है वो। क्लास टेस्ट में आएगा? हाँ, क्लास टेस्ट में आएगा वो। अच्छा, ओके, थैंक यू। पहले हम अपना कैसा था, वो क्लास टेस्ट और वो मर्जी था, एक ही इसमें था, इसलिए वो वैसा हुआ है। पहले अपना वो एक ही इसमें था, क्लास टेस्ट और असाइनमेंट मॉड्यूल। अभी मोबाइल ऐप में अपन ने उसको अलग अलग कर दिया है, लेकिन अभी तक वो इसमें एक ही है, कॉमन ही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लास टेस्ट, ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको असाइनमेंट्स। ये देखो क्लास टेस्ट है ना, इसके अंदर इधर असाइनमेंट्स करके है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा नंबर ऑफ, अभी सबमिशंस भी यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे जो भी अभी सबमिशंस, वो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा। तो क्लास टेस्ट में देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एज असाइनमेंट। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, any other queries किसी को? I think someone has raised hand. Mr. Deshmukh ma'am, you have any query? Rakhi Deshmukh. Okay, fine. So thank you all. We'll end this session.